Hello dear students, in previous classes we have studied exercise question 8.2, question number 1, 2, 3, 4 and 5. Today we will solve same exercise, only 2 questions are left, that is question number 6 and 7. Dear students, in this exercise, so many times I told you, basically midpoint theorem and converse of midpoint theorem application in this exercise. So dear students, next question number 6. So that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समविभाजित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को आप सबसे पहले एक बार दो बार पढ़िए। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, what property, what rule, which theorem you will apply. Here in this question, so that the line segment joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral. So here in this question no figure is given. So first of all draw a rough sketch diagram and you can name it A, B, C, D. So first of all draw a quadrilateral and you can name it A, B, C and D. Name it A, B, C, D. This is the quadrilateral and what is given? Joining the midpoints of opposite sides. Suppose the opposite sides of the quadrilateral AB is what? DC. Suppose the midpoint of the quadrilateral AB is P and midpoint of the quadrilateral is, suppose side BC is Q, here R and S. What is saying? Joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral. तो इसको आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करिए, जस्ट टू ज्वाइन द points P and R, Q and S intersect at point O. तो यही हमको प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स हियर, बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स हियर ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, ओ पी इक्वल टू ओ आर, ये मुझे प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, जस्ट राइट गिवन, गिवन जिसको हिंदी में कहते हैं दिया है या ज्ञात है। क्या गिवन है? एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी एंड नेक्स्ट क्या इसमें, द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट मतलब पी और आर, क्यू एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पी क्यू आर and S are the midpoints of side AB, BC, AB, BC, DC या CD and DA या AD. Then क्या है यहाँ पर आपको, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद इसमें क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव को हिंदी में कहते हैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? तो पी क्यू एंड पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर।
बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स OQ इक्वल टू OS, OP इक्वल टू OR, ये मुझे प्रूव करना है। तो एक स्टेप इसमें और देखिए, स्टेप आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन, व्हाट ज्वाइन? OP, PQ, P से इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, QR ज्वाइंट, RS ज्वाइन या SR ज्वाइन, PS ज्वाइन, और AC को भी आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ जस्ट राइट ज्वाइन PQ, QR, RS and SP and AC. Then what to prove? ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट। देन आपको इसको प्रूव करना है कि आपको इसको प्रूव करने से पहले यहाँ पर जो क्वालिटरल बन रहा है PQRS, जस्ट यू प्रूव इट इज ए व्हाट? पैरेललोग्राम। सो हाउ टू प्रूव? सी हियर, proof. You take triangle ABC. See, P and Q are the midpoints of side AB and BC of a quadrilateral. You know the theorem, midpoint theorem. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. So you write in triangle ABC, P and Q are the, क्योंकि P यहाँ मिड पॉइंट है किसका? AB का। P and Q are the mid points of AB and BC. So therefore by MPT, midpoint theorem, what? PQ parallel to AC and also PQ equal to half of AC. You can write equation number 1. How you got MPT here? नेक्स्ट आपको उसमें सेम ACD या DCA जैसे ले लीजिए, एंड आल्सो ट्रायंगल DAC या ACD, S and R are the midpoints of what? DA and DC या CD, DA and DC या CD। तो सेम वे बाई MPT क्या हो जाएगा? SR पैरेलल टू AC एंड SR equal to half of AC. इक्वेशन नंबर 2 यू राइट द रीजन हाउ MPT, यहाँ भी MPT। सो आपको प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे। Now see, since PQ parallel to AC and SR is parallel to AC, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप डायरेक्टली फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा आपको? PQ parallel to SR and PQ equal to SR या RS। सो इससे क्या मालूम हो गया? ये जो साइड है PQ किसके इक्वल टू हो जाएगा? SR, और पैरेलल भी है। तो दिस इम्प्लाई क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए व्हाट? पैरेललोग्राम। हाउ?
ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल बिकम ए व्हाट, पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिखिए रीजन, पेयर ऑफ अपोजिट, पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल and parallel, then such figure is known as a what, parallelogram. So it means PQRS is a parallelogram. But what you have to prove, आपको क्या प्रूव करना, आपको प्रूव करना है कि जो उसका मिड पॉइंट से अपोजिट साइड जो ज्वाइन करते हैं वो बाइसेक्ट करना है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, यू हैव प्रूव PQRS is a parallelogram. So you know the property of a parallelogram. See here, PR, QS, both are diagonal. So therefore PR and QS are bisect ईच अदर। हाउ, कैसे बाइसेक्ट करता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा, किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। सो नाउ देख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को सी, व्हाट इज द क्वेश्चन, ABC is a triangle, right angle at C, a line through the mid points of M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, so that first question D is the midpoint of AC, second one MD perpendicular to AC, and the third one CM equal to MA equal to half of AB। हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, MD परपेंडिकुलर टू AC, एंड द थर्ड वन इज CM equal to MA equal to half of AB। So dear students, इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिगर नहीं दिया है, आपको फिगर बनाना है। ये ट्रायंगल है, द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो व्हाट इज द नेम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC, बट कंडीशन इज राइट एंगल एट C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ ए ट्रायंगल एंड name it A, B, C. It is given in the question right angle at C, C पर right angle है, तो मैंने ट्रायंगल ABC, C पर राइट एंगल। उसके बाद क्या गिवन है, M is the मिड पॉइंट ऑफ AB। AB आपको क्या हाइपोटेनस है, इसका एक पॉइंट क्या है, AB का M है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC, इंटरसेक्ट पैरेलल टू BC, मतलब ये इसको आपको पैरेलल हो जा रहा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। सो ये आपको गिवन है फिगर में। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन, क्या गिवन है, क्या ज्ञात है, क्या दिया है, गिवन है या दिया है, क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, DM या MD, MD इज पैरेलल टू BC, BC या CB, ये आपको गिवन है। क्या करना है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव
सिद्ध करना है। फर्स्ट नंबर, D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. Second, MD perpendicular to AC. And third number, AM equal to CM equal to half of AB. हाफ ऑफ ए बी, ये आपको है। इसमें आपको एक जस्ट एक स्टेप इंक्रीज है, कंस्ट्रक्शन इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन सीएम को ज्वाइन कर दीजिए। एक पार्ट इसमें इंक्रीज हुआ, तो मुझे प्रूव करना है। व्हाट टू प्रूव? सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को आप क्लियरली पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये ट्रायंगल है। फर्स्ट प्रूफ देखिए, ट्रायंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रायंगल? ABC. इट इज अ व्हाट ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। सिंस C एंगल C is right angle, so opposite side of the right angle is hypotenuse. AB क्या हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का एक पॉइंट ले लिया M इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब ये वाला पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल है। मुझे प्रूव करना, एंड आल्सो गिवन DM या MD पैरेलल टू दी CB और BC, ये गिवन है। सो विच थियरम, क्या थियरम यूज़ करेंगे? मिड पॉइंट थियरम का, मेन थियरम या कन्वर्स पार्ट? तो मेन थियरम में क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ मिड पॉइंट, एक ही मिड पॉइंट दिया है और पैरेलल दिया है, तो इट मीन्स वी विल अप्लाई द मिड पॉइंट थियरम कंसेप्ट कन्वर्स। सो क्या लेंगे यहाँ पर देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, what? M is the midpoint of what? Side AB, and also DM parallel to BC. So therefore, by converse of MPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम का कंसेप्ट, तो क्या हो जाएगा? तो पैरेलल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई AD इक्वल टू DC, या और यू कैन से D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। Second part, you see DM perpendicular to AC या MD perpendicular to AC। ये देखो, आपको ये क्लियरली गिवन है, BC पैरेलल टू MD, और ये आपको ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये जो एंगल, अगर मान लो आपने X लिया, तो ये एंगल 90 है, और इसको Y ले लेंगे सपोज। तो ये देखो, सिंस यहाँ से लिख सकते हैं सेकंड में, सिंस BC पैरेलल टू MD, एंड ये जो क्या हो जाएगा? AC उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एक कंसेप्ट यूज़ होगा आपको। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाई एंगल C इक्वल टू angle X equal to angle 90 degree. How? Corresponding angles are equal. जब ये corresponding, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से ये जो है 90 डिग्री हो गया। तो जब 90 डिग्री होता है तो उससे क्या इंडिकेट करता है? दैट इंडिकेट MD perpendicular to AC. And the third part is very simple. थर्ड पार्ट देख लीजिए,
क्योंकि ए एंगल जो एक्स है आपको 90 डिग्री है, तो एंगल वाई भी, क्योंकि आपको इसको देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल आपको क्या हो जाएगा वाई इज आल्सो 90 डिग्री, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स तो आपको 90 डिग्री है तो वाई डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, या ऐसे 90 होगा तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो यहाँ निकाल देंगे। ये तो बहुत सिंपल सा है। अब इसको हमको प्रूव करना है कि सी एम इक्वल टू ए एम। इन थर्ड केस आप इसमें पहले ले लीजिए ट्रायंगल ए एम डी सी एम डी। इन ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। देखिए यहाँ से क्लियरली आपको क्या हो जाएगा एम डी इक्वल टू एम डी विच इज कॉमन। अब देखिए उसके बाद आपको देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल एक्स, यहाँ से क्या होगा एंगल एक्स इक्वल टू ए डी, ये देखिए ए डी एम, एंगल ए डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपको ए डी एम, और यहाँ से देखिए एंगल सी डी एम, सी डी एम दोनों भी 90 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ से आप लिख सकते हैं सी डी एम, ये दोनों आपको 90 डिग्री मैंने जैसा भी प्रूव किया। नेक्स्ट है आपको देखिए ए डी इक्वल टू डी सी, अभी हमने प्रूव कर दिया, ऑलरेडी प्रूव्ड, या लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड कर दिया। तो इससे क्या मिल गया कि देखिए ट्रायंगल में आपका कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यस यस या यस से यस या एंगल साइड। तो इस ट्रायंगल में दो साइड, टू साइड इंक्लूडेड एंगल, ये साइड ये एंगल और ये साइड, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम डी बाई व्हाट रूल, यस ए यस rule. If triangles are congruent, then corresponding parts are equal. So this imply AM equal to CM, how? CP CT। तो ये प्रूफ हो गया। उसमें एक और पार्ट दे दिया है AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो आप देखिए यहाँ AB किसके इक्वल टू हो जाएगा, AB इक्वल टू AM प्लस BM या MB। सो आपको देखो AM के MB के प्लेस पर क्या लिख सकते हो आप, तो AB इक्वल टू AM प्लस क्योंकि आपका जो है M ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा AM। सो AB इक्वल टू 2AM, दिस इम्प्लाई AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AM इक्वल टू CM है तो वहाँ से क्या हो जाएगा आल्सो इक्वल टू CM। सो इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 7 also completed. So dear students, this exercise this chapter is completed. Now what are the main important things in this chapter? Just I will recall you. इसमें क्या क्या मेन पार्ट है जो आपको मेमोराइज़ करना है, याद करना है, प्रॉपर्टी को आपको बाय हार्ट करना है, समझना है। अगर ये समझ जाएंगे तो आप इस पूरा कंप्लीट आपका जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका अप्लीकेशंस आपको आगे भी आएगा, आगे चैप्टर में आएगा, इवन आपको 10th क्लास में भी आएगा, हायर क्लासेस में भी आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ करके याद करना है। तो व्हाट आर द मेन थिंग इन दिस चैप्टर? बेसिकली क्वाड्रिलेटरल आर 3 टाइप्स, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम एंड काइट। बट basically maximum question in exercise 8.1 and exercise 8.2 पैरेललोग्राम पर ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट इज ए पैरेललोग्राम, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम? जस्ट
Parallelogram is a quadrilateral in which a pair of opposite sides are equal and parallel. So ये जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल हो, इक्वल हो, तो क्या हो जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल बिकम ए पैरेललोग्राम. और सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम. इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. एंड पैरेललोग्राम अगेन क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरी. 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है. What are the rectangle, square, rhombus? So rectangle is also parallelogram in which everything is same, only one difference is each angle right angle. Each angle in a rectangle, each angle is right angle and diagonals are also equal. Same property square is also parallelogram. उसमें क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं और ईच एंगल भी राइट एंगल होता है. नेक्स्ट है रम्बस भी क्या आपको पैरेललोग्राम है, सभी साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं. डायगोनल उसका बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट राइट एंगल. ये आपको है. नेक्स्ट आपको है ट्राइपीजियम. ट्राइपीजियम क्या है, ए पेयर ऑफ, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये आपको जो बेसिक है. नेक्स्ट आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट वन इज मिड पॉइंट थियरम. वंस अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मिड पॉइंट थियरम. मिड पॉइंट थियरम आपको इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट मिड पॉइंट थियरम एंड इट्स कन्वर्स. इट्स वेरी इजी, इंटरेस्टिंग वन. सी दिस इज ए ट्रायंगल. इसको मैं वंस अगेन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एनी 2 साइड्स मिड पॉइंट. सपोज ट्रायंगल इज पी क्यू आर. एक पॉइंट मैंने यहाँ ए ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया, ये ज्वाइन करेंगे तो ए बी इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड मीन्स व्हाट, क्यू आर. एंड ए बी, द लेंथ ऑफ द ए बी इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ क्यू आर. इसका एप्लीकेशन भी मान लो इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 5. 5 है. आउट ऑफ 5 इसमें से कोई भी आपको 4 मालूम रहेगा तो आप 5th वन बाय अप्लाइंग द इसको इजीली निकाल सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन थिंग. कन्वर्स इज वेरी सिंपल. कन्वर्स में क्या होता है, एक मिड पॉइंट से जो लाइन होती है उसको पैरेलल होती है तो बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को. तो दिस इज द कंप्लीट this chapter is completed. So just you practice at home, see your textbook, even exercise questions, word example question, try yourself. Stay home, stay safe. Thank you very much.